आप जीतते हैं या हारते हैं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपनी गलती के साथ क्या करते हैं। इसे पहचानें, स्वीकार करें, इससे सीखें या फिर इसे भूल जाएं। Honorable Chief Guest, respected Principal Sir, teachers and my dear friends, a very warm good morning to one and all. It is my pleasure to welcome you all on this auspicious occasion of National Sports Day, which is celebrated to mark the birth anniversary of Major Dhyan Chand. It is a day of appreciation, recognition and encouragement for all who has been a part of this sports meet, which is continuing since last 3 days. We all are very energetic and active for this sports day, which is clear from our faces. For lamp lighting ceremony, I would like to invite Honorable Principal Sir, Ramesh Sir, Mohini Ma'am and Rekha Ma'am. Education, physical activities had taken a toll due to COVID-19. So let's find out what viewpoints do students carry this time about sports. And for that, I would like to call Thanendra Netan of class 12, section A. Thank you, sir. Good morning to all respected principal sir, teachers, and my dear friends. Thank you to each and every one of you for being here with us. It's my pleasure to welcome you all on annual sports day of our school. As we all know, National Sports Day is celebrated on 29th August of every year on the occasion of birth anniversary of Major Dhyan Chand Singh. He was a legendary Indian hockey player. Major Dhyan Chand is also known as Hockey Wizard. He was born on 29th August 1905 in Allahabad. Father was in British Indian Army and he had played hockey for the country. Sports are very important for all of us because it keeps us strong, healthy and fit. Now, sport is any physical activity that entertains and provides enjoyment. It helps development in the mental, physical as well as emotional attributes of person. Sports are mandatory part of school curriculum for development of students. As we all know, our world is fighting with COVID-19 for almost 2 years. So we should do exercise, yoga and sports to keep our immune power strong and ourselves help at this time to fight COVID-19. We would like to tell you some fitness tips. It would be beneficial to all of you. Exercise daily, exercise for at least an hour. Try to do just 10 push-ups, 10 sit-ups every day. Walk for at least 20 minutes a day and make sure eat the right foods and portion each meal. And also do yoga like starting from Surya Namaskar, do Anulom Vilom and Brahmi Pranayama. Sporting events are held in increasing relevance of sports in our daily life. Olympic is one of them and greatest sporting events. A few weeks ago, Olympic was held in Tokyo, Japan. We won many medals in different sporting events. One of them is gold medalist Neeraj Chopra. He won gold medal in javelin throw. We are proud of our Indian player who performed very well in the Olympic and brought prominence to the country.
In the end, I would like to thank all players who participated in various events. Once again, I express my gratitude to all making Sports Day a success and special. Thank you all. Happy Sports Day. Have a nice day. Thank you, Thani, for letting us know about Major Dhyan Chand and importance of sports and yoga activities. Also about Olympics, which was held in Tokyo, Japan, and our winners too. Now, to keep the body in good health is a duty. Otherwise, we shall not be able to keep the mind strong and clear. Now, I would like to call Cheshta Sahu of class 10th A. Let's see what she has to say on this auspicious occasion. आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चेष्टा साहू कक्षा 10वीं की छात्रा आज इस खेल दिवस के अंतर्गत एक छोटा सा स्पीच लेकर प्रस्तुत हूँ। हॉकी के जादूगर कहलाने वाले मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस को हम राष्ट्रीय खेल दिवस बोलते हैं। खेल हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पढ़ाई के अलावा हमें खेल में भी रुचि लेना चाहिए। खेल हमारे जीवन में हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ाता है। इस दिन को बनाने का एक मुख्य कारण है और वह मुख्य कारण है हमारे देश के नवयुवक, जिन्हें हम खेल के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें ताकि वह खेल के प्रति अच्छे से जान सकें और वो हमारे देश का नाम ऊंचा कर सके। हाल ही में अभी हमारे देश के नीरज चोपड़ा ने जो ओलंपिक में अपना नाम रोशन किया है और हमें देश को बहुत ही अपना नाम बढ़ा दिया है। हम सब अभी कोविड-19 से गुजर रहे हैं। वर्ष 2019 में कोरोना वायरस आया है, तब से हम खेल के प्रति उतना जागरूक नहीं हुए हैं। तो हम घर में बैठे टीवी, फोन, लैपटॉप ये सब में हम बहुत व्यस्त हो गए हैं, जिससे हमारा मानसिक और शारीरिक विकास बिल्कुल रुक गया है। तो हमें इसके लिए प्रतिदिन योगा करना चाहिए, दौड़ भाग करना चाहिए और व्यायाम करना चाहिए, जिससे हमारे शरीर का प्रतिरोधक क्षमता वो बढ़ेगा, जिससे हम बड़ी से बड़ी बीमारियों का भी सामना कर सकते हैं। तो अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, हार जरूरी नहीं है, लेकिन जीतना भी ज़रूरी नहीं है। जीवन में बस खेलना ज़रूरी है। जीवन में बस खेलना ज़रूरी है। धन्यवाद। Thank you so much, Cheshta, for telling us about the effects of COVID-19 and importance of games for we youngsters. No one other than a sports teacher can tell the value of sports or physical activities in day-to-day life. So it's time to call upon our enthusiastic and energetic Numesh sir to give an insight on Sports Day. Good morning, respected principal sir, teachers and dear students. आप सभी को पता है कि आज 29 अगस्त हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं और ये जो मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस, ये जो है मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन के वर्षगांठ पे मनाया जाता है। और तो पहले मैं आप लोगों को मेजर ध्यानचंद जी के बारे में बताना चाहता हूँ। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद में हुआ और ये हॉकी के बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, महान खिलाड़ियों में से एक हैं। और इन्होंने 1926 में हॉकी ज्वाइन किया और अपने कप्तानी में इन्होंने 1928, 1932 और 1936 में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया ओलंपिक में। और इसके इस युग को जो है स्वर्णिम युग कहा जाता है। और जब मेजर ध्यानचंद जी जब हॉकी खेलते थे तो वो इस तरीके से हॉकी खेलते थे कि लोगों को लगता था कि उसकी स्टिक पे जो है चुंबक लगा हुआ है या फिर गोंद लगा हुआ है, क्योंकि बॉल जो है इस तरीके से चिपक के उनकी स्टिक के साथ चलता था कि लोगों को आश्चर्य हो जाता था कि ये इस तरीके से कैसे हो रहा है। तो एक बार उनका स्टिक जो है तोड़कर चेक भी किया गया और वहाँ पे पाया गया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है मेजर ध्यानचंद जी के तकनीक है जिससे वो इतनी अच्छी तरह से खेलते हैं कि लोगों को लगता है कि स्टिक पे कुछ लगा हुआ है और बॉल उसके साथ जा रहा है। और मेजर ध्यानचंद
ध्यानचंद जी जो है उनको हॉकी का विजार्ड भी कहा जाता है, उनको हॉकी के जादूगर भी कहा जाता है। लोग उसके खेल को देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हो रहे थे। और खेल दिवस के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जो खेल दिवस जो है मनाया जाता है, इस दिन होता है कि राष्ट्रपति भवन में जो प्लेयर्स रहते हैं, जो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, उन प्लेयर्स को अवार्ड एंड पुरस्कार दिया जाता है, जिसमें से अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और अभी जो राष्ट्रपति खेल रत्न है उनका हाल ही में हमारे गवर्नमेंट ने नाम चेंज किया है, उसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार के रूप में उन्होंने बदल दिया, उसके नाम से रखा गया है। तो इस तरीके से जो पुरस्कार होते हैं वो आज के दिन दिया जाता है। इसीलिए हम जो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं ताकि जो प्लेयर्स हैं वो जो है नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनको पुरस्कार देने के लिए, ताकि और जो प्लेयर्स हैं वो आगे आए और अच्छा कर सके। ये जो सभी स्टेट में मनाया जाता है, सभी विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ये जो खेल दिवस है ये मनाया जाता है। एक बात और आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 चल रहा है, जिसमें सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है, टीचर्स को पार्टिसिपेट करना है, पेरेंट्स भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। इसमें फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये जो है लोगो है, स्लोगन के साथ ये चल रहा है कि आपको कम से कम आधा घंटा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करनी है, चाहे आप रनिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मतलब आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटी आधा घंटा कम से कम आधा घंटा आपको करना है। तो ये जो प्रोग्राम है ये जो फिट रहने के लिए, ताकि लोग अभी कोविड-19 के कारण सब घरों पे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, और रनिंग और जॉगिंग वॉकिंग का जो है इसमें आप अपने वे जो है रास्ता जो है अपने लिए आप देख सकते हैं कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल है, आप मॉर्निंग कर सकते हैं या फिर इवनिंग में कर सकते हैं, जैसा भी चाहे आप। कोई इसमें टाइमिंग का ये नहीं कि आपको कब करना है, आपको जब भी टाइम मिले आप जो है कर सकते हैं। और ये जो है 2 अक्टूबर तक चलने वाला है, इसमें चलेगा। और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले जो सभी जो स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, इनको सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो ये जो है आपकी फिटनेस के लिए है, कोविड-19 में सब अपने घर में थे, है ना, फिटनेस के लिए आप बाहर जा नहीं सकते थे, तो अभी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है कि कम से कम आप लोगों को आधा घंटा का एक्सरसाइज, रनिंग वॉकिंग आपको करना है। तो इसमें हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, टीचर्स का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, पेरेंट्स भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। पेरेंट्स का जो ग्रुप बनाया हुआ है हम लोगों का, उसमें बच्चों के फोटोज वीडियोस आ रहे हैं, प्राइमरी से भी बहुत सारे फोटोज वीडियोस आ रहे हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से देखिए, अब खेल दिवस है तो फिर ये इसी से हम शुरू कर सकते हैं। ये नहीं कि आप एकदम से आप घर से निकल के आएंगे और फिर फुटबॉल में चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आप क्या करें, पहले रनिंग वॉकिंग कीजिए, आपका इंटरेस्ट आएगा स्पोर्ट्स के प्रति, ठीक है। जब स्पोर्ट्स के प्रति आपका इंटरेस्ट आएगा तभी जब आप जो स्कूल पे गेम खेल सकते हैं, फिर वो इस तरीके से आप स्कूल लेवल से फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, रीजनल लेवल पे, फिर नेशनल लेवल पे जा सकते हैं। जो बाकी जो प्लेयर्स जो आते हैं वो ये नहीं कि वो घर से ही बन के आए हैं, वो आते हैं, मेहनत करते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ये एक तरीका है, गवर्नमेंट ने सोचा है कि किस तरीके से इसको आगे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए इन्होंने ये स्टार्ट किया। पहले ये नहीं होता था, अब कभी आपको बोला नहीं जाता था कि आपको वॉकिंग करना है, रनिंग करना है, किसी ने नहीं बोला था, बट इस बार आपको बोला जा रहा है। इस बार बेस लेवल से प्लेयर्स तैयार करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अभी ओलंपिक्स हुआ जिसमें आप लोगों ने देखा, इस बार सबसे ज्यादा मेडल हमारे देश को इस बार मिला है, 7 मेडल मिला है। बाकी जो ओलंपिक्स थे उससे अपेक्षा बहुत अच्छा इस बार परफॉर्मेंस रहा है। तो और आगे आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा, क्योंकि खेलो इंडिया चल रहा है हमारा। तो खेलो इंडिया से जो स्कूल के बच्चे हैं वो सिलेक्ट होकर जा रहे हैं, एसबीएसबी चला है, जो एसबीएसबी के थ्रू भी बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, जो हम स्कूलों में एसबीएसबी का जो प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बच्चों का जो स्किल है, कौन से फील्ड में वो अच्छे हैं, उसका सबका टेस्ट किया जाता है। टेस्ट जो है रिकॉर्ड करके हम सेंड करते हैं, वहां से वो एनालाइज करके बताते हैं कि कौन से बच्चे का जो परफॉर्मेंस है कौन से गेम के लिए है, मतलब वो कौन से गेम में अच्छा कर सकता है, उसके हिसाब से उस बच्चे को बुलाया जाता है और वहाँ पर उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। तो वही बच्चे जो है आगे जाके नेशनल लेवल पे जा सकते हैं और ओलंपिक के लिए भी खेल सकते हैं। तो इस तरीके से स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। तो जरूरत है हमें इसको जानने की और अपने जो बच्चे हैं उनको बताने की और उनको आगे बढ़ाने की, कैसे आप स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकते हैं इसके लिए। और बाकी पहले से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग जो फिट इंडिया फ्रीडम रन 2.0 का चल रहा है उसमें अपने बच्चों को बोलिए कि कम से कम आधा घंटा वॉकिंग या फिर रनिंग करें, या फिर उनके साथ आप भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अगर आप इन्वॉल्व होते हैं तो फिर और अच्छी बात है। इसमें फिर बच्चा क्या है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा कि हाँ पेरेंट्स भी आ रहे हैं, तो फिर बच्चे के लिए अच्छी बात रहती है। तो मैं और एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि अभी जो मैच हुआ इसमें जिसमें टेबल टेनिस का मैच हुआ, इसमें प्रिंसिपल सर विनर रहे। अब आप देख सकते हैं प्रिंसिपल सर इस एज पे भी इतने फिट हैं और इस तरीके से वो खेल रहे हैं और वो गोल्ड मेडल उनको मिला है और बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था इसमें। और हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम कंडक्ट होते रहते हैं।
अभी बच्चे स्कूल आ नहीं रहे हैं, तो इंटर हाउस वगैरह जो है चलते रहता था, तो बच्चे नहीं आ रहे हैं पर टीचर्स आ रहे हैं। तो हम लोगों ने टीचर्स का प्रोग्राम यहाँ पे मैच का टूर्नामेंट किया था, टेबल टेनिस का और बैडमिंटन का, जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अवार्ड का उनको अभी दिया गया है। तो इस तरीके से मतलब ये नहीं कि घर पे है तो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें कुछ ना कुछ एक्टिविटी करना है। और बस लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को खेल को सिर्फ हॉबी के लिए यूज़ नहीं करना है, मतलब ये नहीं कि मन है तब खेलना है, आपको खेलना है। अब ये नहीं कि मतलब खेलते ही रहना है, आपको कुछ ना कुछ आधा घंटा कुछ ना कुछ करते रहना है। बस इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। An athlete cannot run with money in his pockets. He must run with hope in his heart and dream in his head. Now, I would like to invite Shubham sir to expatiate on Sports Day. धन्यवाद सर। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी साथी शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि हम जानते हैं कि खेल हमारे जीवन में बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। हम खेल में अपने नाम के साथ साथ अपने देश का भी नाम रोशन कर सकते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण ओलंपिक 2021 है, जिसमें से हम लोग देखा कि नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, बजरंग पुनिया, इन जैसे खिलाड़ियों ने देश में ही नहीं विदेश में अपने नाम का, इस देश का परचम लहराया है। हम लोग कोविड-19 में के दौरान हम लोग घर में कैद हो गए, घर में रह गए। इसमें से हम कई एक्सरसाइज नहीं कर पाए, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाए। WHO के द्वारा, स्वास्थ्य संगठन के द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई कि हम लोग कैसे अपने आप को फिट रख सकते हैं। हम लोग खेल में अपना भविष्य भी बना सकते हैं। हम लोग खेल कर ही अपने आप को फिट रख सकते हैं। घर में कई लोग खेल को, जैसे मोबाइल है आजकल, सभी लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं। ये गेम नहीं होते हैं। हमें गेम ऐसे खेलने हैं जिससे हमारी फिजिकल एक्सरसाइज हो, पसीना निकले। इस तरह के खेल जिसमें हम वर्कआउट कर सकते हैं। लूडो खेलना कोई गेम नहीं है कि अगर हम कई देखा है बच्चे लोग क्या करते हैं, मोबाइल में लूडो खेल रहे हैं। और मोबाइल का यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऑनलाइन क्लासेस भी हम लोग मोबाइल में ही ले रहे हैं और क्लासेस के साथ साथ बच्चे गेम खेलने लगते हैं मोबाइल में। इससे क्या है, ये हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। हम लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं, बहुत ज़्यादा समय हम लोग मोबाइल में व्यतीत करते हैं। इससे हमारी आंखों के साथ साथ हमारे शरीर को भी बहुत ज़्यादा नुकसान है। तो आप सभी से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग खेल को अहम भूमिका दें और प्रतिदिन अपने दैनिक कार्य में खेल को जरूर शामिल करें। ओके, यहीं से अपनी वाणी को विराम देते हैं। ओके, धन्यवाद। खेल खेलने से व्यक्ति के दो गुणों में जरूर वृद्धि होती है। पहला, अंत तक हार ना मानना, और दूसरा, खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर अभ्यास करना। Now I am moving forward to invite Rekha ma'am to express herself on Sports Day. परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सभी शिक्षकगण और प्यारे विद्यार्थी, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम सभी यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाने के उद्देश्य से इकट्ठा हुए हैं। अब सवाल ये उठता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को क्यों मनाया जाता है। इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और 29 अगस्त 1905 को हॉकी का जादूगर माने जाने वाले महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी का जन्म हुआ था। उनकी कप्तानी में भारत को 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल मिले और भारत को इंटरनेशनल लेवल पर एक अलग पहचान मिली। इसीलिए 29 अगस्त का दिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में उनको समर्पित किया जाता है। इसी साल कुछ दिन पहले ही खेल जगत के सबसे
सम्मानित पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम भी बदलकर उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। अब बात करते हैं खेल दिवस मनाने के उद्देश्य के बारे में। खेल हमारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। खेल मनोरंजन के लिए भी खेले जाते हैं, परंतु इस दिन को सेलिब्रेट करके हम लोग युवाओं को मोटिवेट करते हैं ताकि वो खुद की तरक्की के साथ साथ खेलों से अपने देश का नाम भी रोशन कर सकें। इस दिन राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा खेल में अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों से सम्मानित किया जाता है। भारत में ये कहावत प्रचलित है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, लेकिन ये सोच समय के साथ बदल रही है। अभी टोक्यो ओलंपिक्स का रिजल्ट आया जिसमें भारत ने 7 मेडल अपने नाम किए। 7 अगस्त के दिन नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में 100 साल बाद भारत को गोल्ड मेडल दिलाया। उनके सम्मान में अब से हर साल 7 अगस्त को जैवलिन थ्रो डे के रूप में मनाने की घोषणा की गई है, जो कि किसी भी खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ी बात है। जब कोई खिलाड़ी मेडल जीत कर लाता है तो देश का हर नागरिक गर्व महसूस करता है। उनको काफ़ी पैसा, सुविधाएं और अच्छी नौकरी भी दी जाती है। उसी वक्त हमारा ध्यान खेलों पर जाता है, लेकिन इस मुकाम पर पहुंचने के लिए उनको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, एक डिसिप्लिन लाइफ जीनी पड़ती है और डेडिकेशन और सेक्रीफाइस की जरूरत पड़ती है, जिसे हमें अच्छे से जानना चाहिए। 5 से 6 साल की छोटी एज से ही वो कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करते हैं, तब जाके वो इतनी बड़ी अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। अगर बचपन से ही बच्चे अपने प्रिय खेल की प्रैक्टिस करें, पेरेंट्स उनको प्रॉपर डाइट, प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडेंस दें, तो हमारा देश भी अमेरिका और चीन की तरह बहुत सारे मेडल्स अपने नाम कर सकता है। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें खेल को किसी न किसी रूप से अपने जीवन में जरूर ही शामिल करना चाहिए। या तो हम उसे अपने करियर के रूप में भी चुन सकते हैं, अदरवाइज हम लोग मनोरंजन के रूप में तो उसे हमें हमेशा अपने खेल अपने जीवन में शामिल करना चाहिए, जिससे कि हमारा शारीरिक मानसिक विकास प्रॉपर हो सके। आओ हम सब खेल को दें ऊंचा आकाश, देश प्रतिष्ठा पाएगा बच्चे करें विकास। दृश्य बदलता जा रहा है यही समय की मांग, खेले और खिलाए हम देश पाए सम्मान। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। The main principle of life is competing against yourself. It's about self-improvement, about being better than you were the day before. Now, to subserve this program, I would like to invite Mr. Amarnath Pathak sir to dissertate. A very good morning to respected principal sir and all the colleagues and dear students present here. So first of all, I feel grateful that I have been given this opportunity to speak on this great occasion of National Sports Day. As we all know that this day is celebrated as birth anniversary of the legendary Major Dhyan Chand ji. And as already said by our colleagues that his legends are known to all of us. The way he has served the country, and he has won gold medal for our country in the years 1928, 32 and 36. So that's exemplary, and these days we find very few people like this whose great performance earned so much recognition. So that's a very great job, and it's very difficult to achieve such kind of recognition. So now coming to the importance of sports in our life. So yesterday we played table tennis tournament in our school, and we all enjoyed it a lot. But besides enjoying, I learned a few things from the game. That this game teaches us concentration, how to concentrate, how to focus, how to keep our cool, how to balance ourselves. So there are several things we get to learn from the sports. It's not that we only entertain ourselves. Besides entertainment, it gives us a lot of inputs which we can benefit from. So definitely we should encourage all the students around us or all the people around us to participate in the
sports as much as possible. And one more thing is that this is our default nature of any student or of any person, that anyone takes interest in the sports. So I feel that there are lots of scope to make career in the field of sports, because besides entertaining yourself, you are getting a career in the sports also. So that's an added advantage, you may say. So, but our conventional nature is, our conventional attitude is that that from the beginning, very few students or very few people take interest in the studies. But game is such thing that by birth or by default, most of the students or most of the people take interest in games. So there is scope for making career in the, there are lots of scope of making career in the field of sports. And recently we watched the Olympic Games, and we found lots of games the kind of achievements of our sports persons are exemplary, and I salute all of them who fought for our country, who won medal or who gave their best at Tokyo Olympics 2020. So with this, I end my speech here, and I thank you all for joining our session. Thank you. For a healthy mind and soul, sports and physical activities are important, not only for children, but also for teachers. So keeping this fact in mind, we had organized table tennis and badminton matches for teachers. It was quite a nail-biting performance. It is my pleasure to announce the result of the match. For table tennis, third place goes to Mr. Amarnath Patil sir. To maintain the protocol, winners are requested to put medals on themselves. Now, second place has been secured by our own PNHE teacher, Mr. Numesh Kumar. Before I declare the name of gold medalist, is a man who played like a pro and set an example for we youngsters. Any guesses? It's none other than the leader of our institution, Mr. S.R. Kujur. Sir, you really a source of inspiration for us. Now for the results of badminton match. Third place goes to Sheeta
शीतल मैम। Give her a big round of applause. Now, second place has been secured by none other than Amrita ma'am. And the first place goes to Aman ma'am. They played under hot rays of sun, so they really deserve a huge round of applause. खेल व्यक्ति के जीवन का सबसे अहम हिस्सा होता है। इसके माध्यम से ही वह अपना शारीरिक और मानसिक रूप से पूर्ण विकास कर पाता है। Now, I would like to invite our honorable and diligent principal sir to address us. Very good morning, one and all present here. I, on behalf of Kendriya Vidyalaya and Higher Academy, welcome and congratulate all the participants, respected VMC members, respected parents, dear teachers, and my beloved children. On this auspicious occasion of National Sports Day, first of all, I congratulate all the participants who have participated in different activities like quiz competition and drawing painting competition, and so many activities have been conducted on this auspicious occasion at school level as well as cluster level. I also congratulate all the winners who have secured the position in different activities on National Sports Day. As I can see in the form of video, so many students have taken part in many games and sports individually and team game. Apart from this, the purpose of this celebration to motivate the children to take part in the games and sports, and also let us promote the activities for the Olympic game, Asian game, and so many competitions in different activities, especially games and sports like yoga abhyas and other abhyas. So there is a sound body has sound mind. इसको हम अक्सर कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है. So it is our moral duty to ensure the physical health and mental health of all students. That is why the government of India is being promoted yoga practice, yoga celebration. It is our prime duty to ensure the physical health and mental health to parents also, each and every citizen of the country. So on this auspicious occasion, I would like to share my personal experience as a student, as a teacher, as a principal. So as a conclusion, I can say, so fitness is required everywhere in the teaching learning process, games and sports and other activities. So recently, so many participants participated in the Olympic game, Tokyo Olympic game, and performed their performance in different events. So some of the winners are from our country also. So day before yesterday, respected Umesh sir has prepared the quiz competition based on the Olympic Games. So let me tell you the beginning of the modern Olympic. So it was included in the quiz question also. The Francis D. Coubertin was the founder of modern Olympic, and it was in the 1896. So the purpose of this type of organizing game to make a relationship between the countries and between two persons and between the people.
सो इन हिंदी भाईचारा और सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने के लिए ही ऐसे खेल आयोजनों का प्रबंध किया जाता है, आयोजन किया जाता है। उनमें सबसे जो महत्वपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो गेम होता है वह ओलंपिक है, जो प्रति 4 वर्ष बाद होता है। उसी तरह से एशियन गेम की बात हम करते हैं तो प्रति 4 वर्ष बाद होता है। तो फिजिकल फिटनेस की बात नहीं, मेंटल फिटनेस की बात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न देशों के लोग जो आपस में जुड़ते हैं। देन यू कैन हैव ऑब्जर्व द लोगो एंड मोटो ऑफ द ओलंपिक कि 5 कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ 5 गोला रिंग बना हुआ है जो कनेक्टेड विद ईच अदर्स। वो ये इस बात का प्रतीक है कि परस्पर जो कॉन्टिनेंट हैं, महाद्वीप हैं, वो जुड़े रहें, परस्पर संबंध मधुर बना रहेगा और इसी तरह से मित्रतापूर्ण भाव बना रहे। तो गेम्स और स्पोर्ट्स से हम यही सीखते हैं कि हम एक दूसरे का सम्मान करें और करना चाहिए और भाईचारे का भाव उत्पन्न होना चाहिए। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस तो होता ही है और हम मजबूत होते हैं, लेकिन हमारे संबंध और मजबूत होते हैं विभिन्न देशों के साथ, विभिन्न कंट्रीज़ के साथ, विभिन्न कॉन्टिनेंट्स के साथ और पर्सन टू पर्सन। जब हम देश में मेजर ध्यानचंद जी का जो जन्म समारोह मनाते हैं एज नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को, तो आपने वीडियो के माध्यम से इनकी जीवनी को देखा होगा किस तरह से उसे हॉकी का जादूगर कहा जाता था। तो बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो सिलेबस में जोड़ा गया था कि हॉकी का जादूगर ध्यानचंद कहा जाता था। और 2 बातें हमें अच्छी तरह से याद है कि फुटबॉल का जादूगर पहले और हॉकी का जो जादूगर ध्यानचंद होते थे। तो उन्हीं के नाम से यह दिन समर्पित है 29 अगस्त को। और भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वह हॉकी है और कालांतर में अन्य खेलों को महत्व दिया जाता रहा है या बच्चों का रुझान क्रिकेट और फुटबॉल और अन्य खेलों की तरफ होता रहा है, लेकिन हमारा राष्ट्रीय खेल जो है वह हॉकी है। तो ध्यानचंद जी के बारे में हमारे बच्चों ने, हमारे अध्यापकों ने बहुत कुछ बातें कही है और हम देखते हैं उनके योगदानों को देश के लिए। जब एडोल्फ हिटलर जब जर्मनी के चांसलर हुआ करते थे, उन्होंने उनके देश की तरफ से इनको खेलने का आह्वान किया था, किंतु इनके देशभक्ति की भावना यहाँ झलकती है कि उन्होंने कहा था कि हम देश के लिए खेलेंगे। उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था और एक ऐसा दौर था जो हॉकी में लगातार 6 समय में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और हॉकी के इतिहास में मेजर ध्यानचंद जी का जो योगदान अमूल्य है और हम आज के दिवस में हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और नए बच्चों को, हमारे जो बडिंग स्टार हैं या कलाकार हैं या एथलीट हैं जो ओलंपियड होंगे, उनको यही संदेश देना चाहते हैं कि वो किसी भी खेल को खेल भावना से खेलें और खेल के जो मुख्य जो बातें होती है, घटक होता है, तत्व होता है, उसकी अनुपालना करें। तो खेल हमें बहुत कुछ सिखा देता है और जीवन में खेल का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। यूँ कहूँ कि हर बच्चे को कुछ ना कुछ गेम या कुछ ना कुछ स्पोर्ट, चाहे इंडिविजुअल हो, टीम हो, खेलना चाहिए फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए। इस अवसर पर आज के जो मुख्य अतिथि है, जो नेशनल एम्पायर बैडमिंटन है, मिस अलका लाकरा, जो बड़ौदा से हैं और हाल फिलहाल में जो बैडमिंटन का कुबेर कप होने वाला है और थॉमस कप टूर्नामेंट होने वाला है, उनमें एक सेलेक्टर के रूप में हैं और आज हमारे बीच हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे रही हैं। निश्चित रूप से आपका आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए एक सुखद अनुभव होगा, एक प्रेरणा स्रोत होगा और हमारे बच्चे भी खेल जगत में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ आप सभी को आज के दिवस की, नेशनल स्पोर्ट दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। Now, I would like to invite our chief guest, Miss Alka Lakra, to bless us and make us more aware about sports. पवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल, शिक्षा उपवन के नए फूल, संस्कृति सरिता के नए कुल। हम ज्योति दीप जागृत प्रभुत, हट जाओ तम के धूल शूल। हम ज्योति दीप जागृत प्रभुत, हट
खेल को इस तरह खेलो कि हारने के बाद भी आपकी तारीफ की जाए। Now we are in the verge of ending this program, and no program is possible without team effort. So put the words into gratitude. I would like to invite Mr. Sumant Yadav to propose vote of thanks. धन्यवाद सर। सर प्रथम आप लोगों को राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। आदरणीय प्राचार्य महोदय एवं साथी शिक्षकगण, आज हम लोग 29 अगस्त खेल दिवस के रूप में मना रहे हैं, जिसे प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे आदरणीय शिक्षक साथियों ने खेल दिवस के ऊपर अपने विचार और उसके महत्व को बताया है। मैं भी थोड़ा सा अपनी तरफ से कुछ बताने की सोच रहा हूँ। तो खेल खेलना हमारे लिए क्यों आवश्यक है और किस हद तक आवश्यक है। और सर भारत सरकार द्वारा भी खेल खेलने की और उसको खेलने की प्रोत्साहित करने के लिए भी कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसका कारण यह है कि जिस तेजी से शहरीकरण हो रहा है और जो मैदान है खेल के और उसे लोगों का जुड़ पाना धीरे धीरे कम हो गया है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी है, खेल मोबाइल में खेले जाते हैं और आप दिन प्रतिदिन देखते हैं कुछ न कुछ ऐसी घटनाएं आती हैं कि बच्चे खेल के द्वारा उनका मानसिक सही नहीं है या फिर कुछ आत्महत्याएँ या ऐसी कुछ अलग प्रकार की न्यूज आती है जो अच्छी नहीं है। तो खेल का मतलब ये होता है कि शारीरिक गतिविधि जिसके द्वारा हम शारीरिक रूप से तो मजबूत होते ही हैं, साथ ही साथ मानसिक रूप से भी मजबूत और स्वस्थ होते हैं। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ और मानसिक रूप से मजबूत रहेंगे तब हम एक अच्छे देश का निर्माण कर सकेंगे। किसी भी क्षेत्र में जाएंगे हम उसमें सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। और आप लोगों के सामने जीवंत उदाहरण है, आप देख सकते हैं कि ओलंपिक 2021 जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने न केवल अपना नाम रोशन किया है बल्कि देश का भी नाम रोशन किया है। अब मैं धन्यवाद के क्रम में सर्वप्रथम आदरणीय रेखा देवी मैडम को धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने खेल के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार हमें दिए, जिसके लिए उन्होंने बताया कि खेल क्यों खेले जाते हैं और खेल के महत्व क्या है और घर में रहते हुए भी कोरोना काल के दौरान हम अपने आप को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं खेल के द्वारा। अगले क्रम में मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय पाठक सर को जिन्होंने ओलंपिक के द्वारा जो खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है और खेल कर भी हम अपना भविष्य बना सकते हैं। इसके लिए हमें कड़ी मेहनत और उचित मार्गदर्शन की आवश्यकता है। धन्यवाद सर। अब मैं अगला धन्यवाद आदरणीय शुभम सर को देना चाहता हूँ जिन्होंने कोविड के दौरान घर में बंद रहते हुए अपने आप को किस प्रकार से स्वस्थ रखेंगे और अपने को बिजी रखेंगे, व्यस्त रखेंगे। शुभम सर ने भी इस बात को काफी जोर देकर बताया कि मोबाइल में गेम खेलने से ही गेम नहीं है। गेम का मतलब है कि जिसमें शारीरिक गतिविधि हो, जिसमें क्रियाकलाप हो। धन्यवाद शुभम सर। नुमेश सर को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस विद्यालय में कई सारे गेम 1-2 दिन में कराए, जिसमें टेबल टेनिस और बैडमिंटन शामिल है, जिसके लिए आज मंच से लोगों को पुरस्कृत किया गया। गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज दिया गया। तो धन्यवाद नुमेश सर। और तो ऑनलाइन के माध्यम से भी बच्चों से लगातार जुड़े हुए हैं और उनको अलग अलग एक्टिविटी क्रियाकलाप कराए जा रहे हैं और उन्होंने अपने वक्तव्य से यहाँ बताया खेल के महत्व को। धन्यवाद सर। अब मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ प्राचार्य महोदय को जिन्होंने बताया कि खेल
से ही हम स्वस्थ होते हैं और जब हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो हम अपने दिन भर की गतिविधि में अपने को व्यस्त रखते हैं, उसमें से जितना भी हम समय निकाल सकें खेल कूद के लिए हमें जरूर निकालना चाहिए। धन्यवाद सर। और मैं अंत में आदित्य सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने, माफी चाहूँगा मैं कुछ नाम भूल गया हूँ, जिसने हमारे प्यारे छात्रों में थानेन्द्र नेता और चेष्टा साहू ने भी खेल के महत्व पर प्रकाश डाला है और खेल खेलना और उसकी क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में उन्होंने बताया। मैं आदित्य सर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद सर जिन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन बड़ी खूबसूरती के साथ किया और यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथीगण जिन्होंने इस प्रोग्राम को पूर्ण रूप से पूरा करने में सहयोग किया। धन्यवाद सर। धन्यवाद आप सभी।